Hi everyone. I think there are very few users right now. This is Madhu from Ovens Up. We are waiting for a few others to join in and then probably we can start our recipe today. Thank you. I see Sachin here. I see Trapti here. Hi guys. Pushpanti is here. Let's wait for a few minutes and then we can start. Meanwhile, let me take you around the kitchen and show you a few of the things that we've already prepared. Let me know if you're able to watch everything very properly and I'm audible to you guys. So these are the Amul products. These are the hampers that were sent. So I have dark chocolate and then milk chocolate. I have Amul fresh cream. I have Amul butter. I have Amul cheese slices. I have Amul cheese block. And I have frozen paneer from Amul. And we of course use Amul milk every day. So there are two recipes that I'm gonna do today. I'll start with the ingredients, etc. in some time. Guys, give me a thumbs up in case if you're able to hear me well. Show me a thumbs up, please. Okay, so I think most of the people are able to watch me. And let me just show you the place where we're gonna make the final presentation. It's incomplete right now because we don't have the dishes. And I'll also show you how to photograph your beautiful recipes that you do here. So this is the place where I'm gonna present it and show you how to take pictures. I have some drinks ready here that we all can enjoy together, at least virtually. So I think we have a good amount of people, but still maybe let's wait for few more to join. I hope all of you guys are doing well in this lockdown period and are safe at home with your family and loved ones. Even if you are away from them, I hope you're doing well and you're busy in something, probably a hobby, your own work, or and following all the government guidelines and feeling good. Not always do we get such kind of an opportunity जहाँ पे हम लोग अपने घर में अपने घर वालों के साथ अपने हिसाब से time spend कर सकते हैं. So I think this is a beautiful period. Same as with me. I live with my family in Indore. I have my father-in-law, my daughter, and my husband here with me. Although my husband works more than usual hours, but still we're trying to make the most out of this. And I think जो ये lockdown वाला period है, this is one good period for family bonding. And I'm sure you guys must be spending a lot of time in your kitchen. A lot of time in your kitchen. Lot of your what do you call discussions would be around food, like क्या बनाना है, or first of all कहाँ से लाना है, or whether it's safe or not, and how to sanitize it. You know, I'm from Indore and we get vegetables from IMC, that is Nagar Nigam, you know, municipality. So we get it sanitized. But although we get it sanitized, we are supposed to do it again at home. So what we usually do is whatever fruits and vegetables that we get, we bring in, wash it under running water for a good amount of time, and then we put it in baking soda and equal proportion of salt. I hope you guys are also following the same. Soak all this for half an hour and then put it again in running water. Then probably the RO or the filter water that you're using, you can just wash it again, dry the vegetables, and then store it in the refrigerator. Do not keep them for long in the like in the bucket or the tub that you're using. Do not soak them for long because you have to store this vegetable like the stock for a longer period of time. So अगर आप ज़्यादा देर तक सोक करके रखते हो तो vegetables ख़राब होने का डर रहता है.
So anyways, I'm gonna start the recipe now. We have some viewers here. So I have my husband here who's gonna help me with the video. Sachin, can you just say hi to everyone? So that's Hi. Sachin, and he's gonna help me with the video today. Let me know in case if you have any questions in between or towards the end. I'm also gonna show you how to style your food, because that's what I started with. Okay, so before going to the recipe, let me give my brief introduction. You guys saw my name up in the live video post. So again, for the ones who joined now, I am Madhu Bordian Hata. I am from Indore, and I'm the owner of Ovens Up. So Ovens Up, basically I started like around 9 years ago. So I would say I'm in this food situation for about 9 years of styling, photographing, and creating recipes. So I started with a blog initially when I was in New York, but after some time I thought that blog wasn't enough, and I wanted to use my hobby, which is now my passion also, elsewhere. So my husband and my family suggested that I should be probably doing a website. So I started curating recipes, and we put that all on our website, ovensup.com. Then after some time I thought this was not enough. I need to do more. So then we moved on to, I moved on to writing a book. It's available on Amazon in the name of Opens Up, a vegetarian cooking Wonderland. It's open for download right now. And then after some time I thought food styling and food photography is a must, because I love clicking pictures. You need to speak louder. Okay, I need to be louder? Yeah. So I thought that food photography and food styling was my forte. So you must have seen in a lot of Amul ads, the utterly butterly delicious girl. So there's somebody who styles the whole picture. There is somebody who takes a picture of the butter, the cheese, the cream, the flowing milk, and it all looks so beautiful. So, there's somebody behind this. So I thought I wanted to venture into this. So when I started, you can visit my Instagram page. It's by the name of Ovens Up by Madhu. And you can see a lot of food styling and food photography pictures over there that I've done for various companies, for myself, for my family, and just for fun also. And after that, I thought this was also not enough. If I am in a particular line, I need to go ahead. I need to excel in this. So I thought of getting into manufacturing, because seeing your own product displayed in various hotels or airports, no more of a satisfaction than that. So I started manufacturing of energy bars and wellness bars, which are completely natural and completely artificial flavors free, and it's completely raw. We do not cook it at all, and they are available at major hotels across India and airports too, like Bombay, Indore. Instagram page again. Okay, my Instagram page is in the name of Ovens Up by Madhu. It's I've posted links also. If they're not visible, I'll probably put it in the comment section later on. So that was about me, and I hope you guys are enjoying all these Amul videos and loving the time with your family. And I'm sure you guys have made a lot of dishes and a lot of delicacies. You've tried everything, and I think everyone in the family would have been involved. कोई डिस्कशन में, कोई सोचने में कि कैसे बनाना है, और कोई सिर्फ चिल्लाने में कि इतने बर्तन कैसे हो गए. So I think the same situation in my family. I want to thank Amul for giving me this big opportunity to talk to all of you guys on this such a big platform. And see guys, they sent me such a big hamper to be used for the recipes that I'm doing, and I usually use only Amul. हमारे घर में Amul का ही दूध आता है. You can see I have Amul cheese blocks, I have fresh cream, I have Amul butter जो हम सब बचपन से खा रहे हैं.
Amul cheese slices, I have Amul frozen paneer, and I have the best part, Amul milk chocolate. So thank you again, Amul. People are getting voice is low or something. So. Okay, so thank you again, Amul, for giving me this opportunity to stand here and present my recipes. Okay, so enough of talking, moving on to the recipes. I'll try to be very loud in case if somebody misses out upon the ingredients. No problem, ये recipe ऐसी है ही नहीं कि आप कुछ miss कर सकते हो. This recipe, I'm going to do 2 recipes with you guys. ये दोनों रेसिपीज ऐसी है जिसमें आपको कोई भी इंग्रेडिएंट मिसिंग नहीं हो सकता, कोई भी इंग्रेडिएंट मिसिंग नहीं हो सकता है. ओके, जस्ट मार्क माय वर्ड्स. जो इंग्रेडिएंट्स मैं बताऊंगी वो आपके घर में है, और नहीं होंगे तो मैं उसके ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगी. सो दीज आर द रेसिपीज दैट वी गोना डू. So this is presented by, of course, me, Ovenzup, and Amol today. So the first one that we're going to do is a savory recipe. It's open buns Mexicana. So we're going to do like a open bun recipe, Mexican style. And then the next is super mango delight. This is a sandwich recipe. Why super mango? I'll let you know later. And अगर इनमें से कोई भी ingredients आपके पास नहीं होते हैं, then I'm gonna give you options also. और वो भी options ऐसे हैं जो आपके घर में available है. So let's start with the first recipe. Come have a look at the ingredients. Okay, so can you focus here? So the first thing that we have here in our ingredients is Amul butter. Let me just put on the gas. Okay. Yeah. Okay. So the first ingredient that we have here is butter, which is, I think, very visible to all of you. Second is Amul paneer, frozen paneer. इसको मैंने thaw कर लिया है for about 35-40 minutes. That's enough. आप उसको कट करके वापस फ्रीजर में डाल सकते हैं. So this is butter, room temperature. Sandwich या open buns अगर हम बनाते हैं तो हमें कभी भी इसमें फ्रिज से निकाला हुआ डायरेक्ट बटर नहीं चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है जब आप अप्लाई करोगे बन पे या सैंडविच पे हमेशा ब्रेक हो जाता है. सो वी डोंट वांट दैट. ब्रेड ब्रेक हो जाता है. सो वी वांट रूम टेम्परेचर. मेल्टेड भी नहीं चाहिए बिकॉज वो घी जैसे लगेगा, उसका टेस्ट ही चेंज हो जाएगा. सेकेंडली, as I said, I have some frozen paneer here. Then I have this beauty cheese block. Okay, Amul के ये सारे products हैं. Going on to the major ingredients, I have buns here. I am using burger buns here. अगर आपके सिटी में या आपकी विसिनिटी में अभी buns अवेलेबल नहीं हैं ये वाले, तो आप पाव भाजी के buns यूज़ कर सकते हो, और नहीं है तो आप सिंपली ब्रेड यूज़ कर सकते हो. और अगर ये भी अवेलेबल नहीं है, आप छोटे छोटे आप ये कर सकते हो कि छोटे छोटे पराठे बनाइए, थोड़े स्टिफ, ओके, एंड उसको ब्रेड की तरह यूज करिए. नो ईस्ट, नो बेकिंग सोडा, नो बेकिंग पाउडर, होममेड एंड फ्रेश. सो यू हैव ऑप्शन फॉर एवरीथिंग. कम ऑन हियर. So the fresh ingredients, the other fresh ingredients that we need, a few slices of tomatoes and few slices of onion, and I have this black dal. दाल मखानी जिससे हम बनाते हैं, उड़द की दाल. इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया है 8 आवर्स. अगर आपको शाम को बनाना है तो आप 8 आवर्स के लिए इसको सोक कर सकते हो. एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट टेक अबाउट 1 to 2 whistles. थोड़ा सा ही पानी इसमें लगेगा. लाइक अगर 1 cup ऑफ दाल है तो आप अबाउट 2 cups ऑफ वाटर, ये थोड़ा सा इसके लेवल के ऊपर आ जाए उतने पानी में, एंड विथ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, नॉट मच बिकॉज वी गोना ऐड मोर सॉल्ट लेटर ऑन, वो डाल के आप इसको बॉईल करके रख सकते हैं. दिस कैन स्टे इन द फ्रिज फॉर 2 days. सो इन केस इफ यू हैव गेस्ट, अभी नहीं, लेटर ऑन इफ यू वांट टू मेक दिस रेसिपी, तो आप ये पहले से ही 1-2 दिन पहले ही आप प्रिपेयर करके रख सकते हो इन फ्रिज. जस्ट इसके ऊपर क्लिंग फॉइल लगा दीजिए, ये खराब नहीं होगा. ओके, सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स of this recipe, and it's called open buns Mexicana. So let's begin. Okay, I forgot to show the other ingredients. I have some black pepper crusher here, in which I have fresh black pepper.
आई हैव सॉल्ट, आई हैव सौंठ पाउडर मतलब जिंजर पाउडर। आप चाहें तो फ्रेश जिंजर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश जिंजर क्या होता है कभी कभी थोड़ा सा मुंह में आता है एंड वो पूरा टेस्ट ख़राब कर देता है। सो वी डोंट वांट एनीथिंग टू बी टू लाउड हियर, इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं सौंठ पाउडर। उसके अलावा आई हैव हियर एन इटालियन सीजनिंग मिक्स। अगर आपके पास इटालियन सीजनिंग मिक्स नहीं है और आपके पास अलग से ऑरिगेनो है, रोज़मेरी है, बेसिल है, ये सब चीज़ें, तो आप उसका एक ब्लेंड बना लीजिए। और अगर ये भी नहीं है देन फॉरगेट अबाउट इट, ऑल यू नीड इज़ ब्लैक पेपर। वो भी नहीं है तो लाल मिर्ची चलेगी। एंड देन आई हैव दिस जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट हियर। सो जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐसा है, आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं, आप बाहर से भी ला सकते हैं, और दोनों में से एक इंग्रेडिएंट नहीं है तो चलेगा, बिकॉज वी आर यूजिंग जिंजर पाउडर हियर। जिंजर पाउडर नहीं है, जस्ट स्किप इट। नो इंग्रेडिएंट इज अ कंपल्शन हियर, और कोई इंग्रेडिएंट का कोई प्रोपोर्शन नहीं है। ये हम होममेड रेसिपीज कर रहे हैं, ईजी टू मेक। We are going to make these at home. We are not hotels or restaurants. We are homes. So we can do anything. We can change the proportions. We can change the ingredients. Okay. So I have this this iron board, this tawa here, on which I'm going to make the buns. So how we're going to begin is, सबसे पहले हमें buns लेने हैं और इन buns को कट करना है बीच में से। ठीक है, इसके लिए वन टिप, आप एक बहुत शार्प नाइफ यूज़ करिए, वरना बंस टूट सकते हैं। ओके, सो यू यूज़ दैट। सो आई ऑलरेडी कट वन हियर एंड केप टू सेव टाइम। ठीक है, सबसे पहले हम ये करेंगे, दोनों बंस को हमें बटर करना है। ठीक है, नाउ Can you use moong sprout as well instead of? Can I use what? Moong sprout. Yes, you can definitely use मूंग स्प्राउट्स। स्प्राउट्स तो ऑल द मोर हेल्दियर होते हैं। इसके रिप्लेसमेंट में अगर मान लो आपके पास ये ब्लैक दाल नहीं है तो आप चना ले सकते हो, आप राजमा ले सकते हो। राजमा इज़ अनदर इंग्रेडिएंट दैट्स वेरी कॉमनली यूज्ड इन एनी मैक्सिकन रेसिपी। और ज़रूरी नहीं है, इसको नाम मैंने मैक्सिकन दिया है बिकॉज मैं थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज कर रही हूँ बनाने का। हम बिल्कुल देसी स्टाइल में बना सकते हैं, हम इसमें चने डाल सकते हैं, जो दाल डालनी है वो डाल सकते हैं। एंड रिजल्ट इज गोना बी रियली यमी, बिलीव मी। ओके, सो यहाँ पे हमने बटर लगा दिया है। आई वुड नॉट से बहुत बटर लगाइए बिकॉज अंदर चीज़ आएगा, पनीर आएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें आने वाली है। On another gas, what I'm gonna do is add little bit of more butter, और हम ये जो दाल है, ब्लैक लेंटिल्स है, इसको प्रिपेयर करेंगे। सो थोड़ा सा बटर हमको लेना है और इसको मेल्ट करेंगे। So while this melts, what I'm gonna do is I'm gonna put these buns here on the tawa. इसको स्लो फ्लेम पे साइड में हम बना सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रेसिपी इज़ यू डोंट नीड एनी फैंसी मिक्सर और ग्राइंडर, या कोई बहुत बड़ा आपको ग्रिडल चाहिए, या वो जो बड़े बड़े मिक्सर्स आते हैं फॉर मेकिंग डोज एंड एवरीथिंग। ऐसा कुछ भी फैंसी स्टफ आपको नहीं चाहिए। यू जस्ट रिक्वायर वन तवा। ये तो मेरे पास थोड़ा सा ऐसे फैंसी टाइप का था, आप रेगुलर गोल तवा भी यूज़ कर सकते हो, नॉन स्टिक, एनी टाइप ऑफ तवा। लेकिन अगर आपके पास कई बार होता है कि नॉन स्टिक तवा खराब हो जाता है, डोसा बना बना के घिस घिस के ब्लैक कोटिंग चली जाती है एंड यू नॉट एबल टू मेक ऑन इट, यू नो, खराब हो जाता है। व्हाट यू कैन डू इज आप नॉर्मल तवा यूज़ करिए, आपका एनोडाइज या कास्ट आयरन का भी। यू कैन जस्ट मेक इट वार्म, थोड़ा सा तेल लगाइए और ऊपर से एक गीला कपड़ा घुमा दीजिए, वो नॉन स्टिक हो जाएगा। ओके, सो हियर एक तरफ हमारी बंस हो रहे हैं और दूसरी तरफ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बटर हमारा मेल्ट हो गया है, जस्ट कीप अ वॉच इस पे कि एकदम से जल ना जाए। ठीक है, बटर का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो बहुत लो होता है, तो वो बहुत फास्ट जलने का इसका डर होता है। मैंने थोड़ा सा इसमें इटालियन सीजनिंग डाली है और अब मैं इसमें थोड़ा सा ये जो हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट है, वी आर नॉट गोइंग टू ओवरडू एनी फ्लेवर हियर। ठीक है, थोड़ा सा ये डालूंगी, जस्ट मिक्स इट वेल। ओके, एंड उसमें मैं आई एम गोना मेक 2 buns, उस हिसाब से
मैं इसमें ये ब्लैक दाल डाल दूँगी। ब्लैक दाल को ओवर बॉईल मत करिएगा। 1 कप ऑफ दाल के लिए जो ओवरनाइट सोक्ड है उसके लिए जस्ट 8 आवर्स ऑफ सोकिंग एंड 2 whistles इन अ स्मॉल कुकर इज़ इनफ। ये हो गया है। इसमें मेरे को डालना है थोड़ा सा सॉल्ट। आई प्रेफर यूजिंग माई फिंगर्स फॉर दिस। जो स्वाद हाथ के बने हुए खाने में है वो स्पून में नहीं है। So and little bit of lemon, dash of lemon. So आप देखिए ये completely healthy dish बन रही है यहाँ पे। We are not using anything which is really artificial here. We are using like protein based stuff here. Breads में भी मैंने आपको options बताए हैं। आप मल्टीग्रेन, होल व्हीट, आटा, जो इतने सारे अवेलेबल होते हैं कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं 2 मिनट के लिए सौते होने दूँगी। तब तक आई टेल यू हाउ टू प्रिपेयर दीज। अब इसके लिए आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक। ठीक है, क्या करेंगे, थोड़ा सा और बटर लेंगे, बहुत नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, स्प्रेड कर दीजिए अपने तवे के ऊपर। अब आप इसमें डालिए थोड़ा सा जिंजर पाउडर। जैसे मैंने बताया, कोई भी हम यहाँ पे जो फ्लेवर है उसको बहुत ज़्यादा लाउड नहीं रखेंगे। व्हाट यू डू इज़ सिंपल, यहाँ रख दीजिए टमेटोज़ को। सो आई एम गोना डू 4 slices of tomato and I'm gonna do 4 slices of onions for this. Maybe 1 or 2 extra for garnish. ओके, ये हमारी दाल यहाँ पे हो चुकी है। बहुत गर्म नहीं करनी है बिकॉज उसको ठंडा होने में टाइम लग जाएगा और हमारे बंस ख़राब हो सकते हैं बहुत गर्म चीज़ों से। सो थोड़ा हल्के हाथ से इसको प्रेस करिए, बहुत नहीं। Isn't it very easy? You can have your kids, you can have your husband, your family, your father-in-law, mother-in-law सब मिलके बना सकते हैं और सब अराउंड द टेबल बैठ के इस डिलीशियस रेसिपी को खा सकते हैं। I'll just take this चिमटा, this is much more easier. इसको टर्न कर लीजिए थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा हमको इसको कुक नहीं करना है, थोड़ा क्रंची छोड़ना है। रीज़न बीइंग दिस इज़ अ सैंडविच, दिस इज़ नॉट अ सब्जी और अ दाल। ये सब हम इसको टर्न कर देंगे ऐसे एंड मे बी फॉर फ्यू लाइक मे बी अ मिनट इसको और होने देते हैं। तब तक हम हमारे जो बंस हैं उनको थोड़ा सा बीच में से ऐसे करके दबा देते हैं सो दैट वी गेट अ लाइक अ होल, लाइक अ यू नो, इसमें हम अच्छी तरह से हमारी फिलिंग आ जाएगी। ओके, सो हियर वी आर एंड नाउ थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए पहले तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, बहुत नहीं, नहीं तो ये सब अपना क्रंच ख़त्म हो जाएगा इनका। ओके, एंड देन लास्ट इज यू पुट ब्लैक पेपर। ये टेस्ट के अनुसार आप डालिए। आपको अगर ज़्यादा लाउड फ्लेवर पसंद है ब्लैक पेपर का तो ज़्यादा आप कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। लास्ट में मैं क्या करने वाली हूँ, फ्यू क्यूब्स ऑफ पनीर, इनको भी मैं यहाँ पे बीच बीच में सौते कर लूँगी, बहुत नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, तो ये इन अ वे इस बटर और ये जो ड्राई जिंजर पाउडर है और सॉल्ट है, ये एक तरीके से इसका मैरिनेशन हो गया, यू नो, मैरिनेट हो गया। हमें अलग से 2 घंटे पहले कुछ भी मैरिनेट नहीं करना है, दही में, इसमें उसमें, हमारा सब कुछ एक ही तवे पे एक ही इक्विपमेंट के साथ हो जाएगा। आइए, People are asking तवा कहाँ से लिया है? तवा, ओ आई ब्रॉट दिस ऑनलाइन। ये बहुत इजी टू यूज़ है, यू नो, यू कैन मेक 2 डोसा एट अ टाइम। मेहमान आ जाते हैं, इट्स सच अ हेल अगर आपको ये सब बनाना हो तो। लेकिन ऐसे बड़े तवे, इससे भी बड़े तवे मिलते हैं मेरे फैमिली साइज़ के हिसाब से और मेरे गेस्ट साइज़ के हिसाब से। आई बॉट 2 ऑफ दीज, सो इट्स ईजी टू यूज़। आप ऑनलाइन इसको चेक कर लीजिए, ये ईजिली अवेलेबल है। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट, ये हमारा सब कुछ रेडी हो गया है। पहले हम एक नॉर्मल प्लेट में इसको ले लेंगे। ये मैंने दोनों बंस यहाँ पे रख दिए हैं। ओके, गैस बंद कर देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट लेयरिंग। सबसे पहले हम टोमेटो का लेयर करेंगे।
दिस लुक्स ब्यूटिफुल। और कई लोगों को सिर्फ टोमेटो या सिर्फ ओनियन नहीं अच्छा लगता है, एंड दे रियली मिस आउट अपॉन दीज वेजिटेबल्स। बट अगर आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे और इस तरह से इसको बनाएंगे, किसी भी चीज़ का टेस्ट बहुत लाउड नहीं आएगा, सब कुछ बहुत सटल होगा और बहुत डिलिशियस होने वाला है। तो ये रिंग्स को आप स्प्रेड कर दो। रिंग्स मैंने इसलिए बोली बिकॉज बन इज़ लाइक इट हैज़ अ राउंड शेप एंड एवरीथिंग राउंड इस पर अच्छा लगेगा। आप कैसे भी इसको काट सकते हो, बट अगर हम इसको बहुत छोटा छोटा काट देते हैं ना, तो क्या होता है, इट लूजेज इट्स एक्चुअल फ्लेवर, यू नो, वो दाल और सब्जी जैसे हो जाएगा। सो वी हैव दिस रेडी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पनीर के क्यूब्स, ये दाल हमारे पास रेडी है, ठीक है, लेंटिल्स, ब्लैक लेंटिल्स। अब हम इस पनीर को भी यहाँ पे लेयर कर देंगे। जस्ट ब्रेक इट विथ योर हैंड्स, या जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, लाइक दिस। सो ये मैरिनेटेड पनीर जो कि फ्यू सेकेंड्स या मे बी अ मिनट में रेडी हो गया। लास्ट वुड बी आवर दाल और ब्लैक लेंटिल्स। मैंने कोई मैक्सिकन सॉस नहीं यूज़ किया बिकॉज आई वॉन्टेड माई रेसिपी योर टू बी वन विच कैन बी ईजिली मेड इन दिस लॉकडाउन पीरियड। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चीज़, सबका फेवरेट। आई थिंक कोई ऐसे होंगे शायद जिन्हें चीज़ नहीं पसंद है, तो इन केस इफ़ यू डू नॉट लाइक इट और फॉर सम रीजन्स, हेल्थ रीजन्स और एनीथिंग, इफ़ यू डू नॉट वांट इट, जस्ट स्किप इट। ये ऑलमोस्ट हमारा फिनिश हो गया है। आई जस्ट गेट माई प्लेट एंड आई विल शो यू हाउ टू प्रेजेंट दिस। ओके, सो वन मोर थिंग, यू नो, जब भी आप कुछ खाना बनाते हैं और बहुत मेहनत से बनाते हैं, राइट, एनी वुमन, मैन, एनीवन हु इज कुकिंग, बहुत मेहनत लगती है उसमें, देयर इज सो मच ऑफ लव इन इट, सो व्हाई नॉट प्रेजेंट इट वेल, यू नो। अगर आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो एवरीवन इज गोना रियली लाइक, भले ही वो रेसिपी कैसी भी हो, बट अगर प्रेजेंटेशन अच्छा है, पीपल आर गोना लव इट। सो आई एम गोना शो यू हाउ टू प्रेजेंट दिस एंड देन वी कैन गो ऑन टू द अदर रेसिपी। You can show the Amul products. Okay, Sachin, so you can come this side and then I can. So I have this little tray, plate, whatever you say, platter here, जिसको मैं use करने वाली हूँ. Okay, how do they look, guys? How do they look? Easy, homemade, fresh and healthy, isn't it? Let me know how do they look, guys. So अब मैं इसको गार्निश करूँगी। कोई भी ब्यूटीफुल सी प्लेट ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है वाइट बैकग्राउंड। मैं फूड स्टाइलिंग करती हूँ, सो आई हैव दीज थिंग्स एंड आई लाइक टू कलेक्ट सच थिंग्स फ्रॉम एनीवेयर। आई हैव दीज कैरेट्स, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखूँगी। few bell peppers I have because हमारे एरिया में we are not getting very fresh coriander and stuff, तो मेरे पास कुछ bell peppers थे, वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। आप चाहो तो ऊपर लाइक ऑलिव्स भी लगा सकते हो, मशरूम्स भी लगा सकते हो, थोड़ा थोड़ा सौते करके, जो भी आपके पास अवेलेबल है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस रेसिपी को बनाने के लिए। One person is asking, can they use tomato sauce? Yeah, you can obviously. For the onion and tomato. Okay, yeah. So yes, you can use tomato sauce. I'll give you a good tip, you know. अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पिज़्ज़ा सॉस और केचप जो होता है, इट्स ऑल अप टू योर टेस्ट। आप लगाइए उसको, बहुत अच्छा ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर हो जाता है। सिंस आई वॉज मेकिंग अ वेरी सैवरी डिश हियर, इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्लूड केचप और पिज़्ज़ा सॉस, और मान लीजिए पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, दिस अ वेरी गुड टिप, आप थोड़ा सा रेड चिली सॉस लीजिए और थोड़ा सा रेगुलर केचप लीजिए, ठीक है। दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करिए इक्वल प्रोपोर्शंस में, और डिपेंडिंग अपॉन द स्पाइसीनेस दैट यू नीड। थोड़ा सा उसमें आप इटालियन सीजनिंग डालिए और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, उसको मिक्स करिए, आपका पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। घर में पिज़्ज़ा सॉस की कभी कमी नहीं होगी। ओके, सो यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट। And I thought of making a little flower here for you guys.
अच्छी तरह से हम हमारा प्लेट प्रेजेंट करेंगे। मुझे बताइए आप लोग ने लॉकडाउन में क्या क्या बनाया और उसके आगे पीछे क्या क्या किस्से हुए घर में। आई रियली वुड लाइक टू हियर दैट। सो आई हैड कैरेट, उसको मैंने थोड़ा सा फूड कार्विंग फूड बचपन में कभी सीखी थी विथ सम ऑफ माई कजिन्स, उसको यूज़ करने का ट्राई किया। Although it didn't come out very well, but I think my family and yours is also going to enjoy this. So how does this look, guys? Can you just focus on the dish here? Yeah. Like that. So I'm going to put it over our table here and then we can move on to the next recipe. So the next recipe would come here. Okay. Okay, so I hope you guys enjoyed this interaction and the first recipe, which was open buns Mexicana. Thank you, Amul, again for bringing this beautiful live session for all of us and creating all these beautiful products, these delicious products, which all of us either carry in tiffins, eat it as a midnight snack, या लंच में या डिनर में, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में अमूल एवरीडे होता ही है. सो थैंक यू वेरी मच again. So let's move on to our next recipe. Our next recipe is Super Mango Delight. Why Super Mango Delight? We all know superfoods खाने बहुत ज़रूरी है, ठीक है? Like dry nuts, fruits, maybe milk products, maybe anything, vegetables, all these are superfoods. लेकिन रोज़ इसको कैसे हम हमारे ब्रेकफास्ट में या जो स्नैक्स हम यूज़ करते हैं खाते हैं रात को दिन में, कभी भी लॉकडाउन चल रहा है ज़्यादा भी भूख लगती है, कैसे इंक्लूड करो. और स्पेशली बच्चे और सम पीपल दे रियली डू नॉट लाइक टू ईट सुपर फूड्स लाइक सीड्स और ड्राई फ्रूट्स के नाम से उनको लगता है कि ओहो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. बट टुडे वी गोना मेक अ रेसिपी, किसी को पता भी नहीं चलेगा इसमें क्या है. अगर आप भी नहीं पसंद करते हो ड्राई फ्रूट्स नट्स सीड्स यूज करना खाना, आप भी इसको टेस्ट करके देखिए, बना के देखिए. आई एम श्योर यू गोना मेक दिस एज अ रिपीट रेसिपी, not like in months but every week, at least on Sundays you're gonna give this treat to your family. So मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिन्हें स्वीट क्रेविंग दिन भर होती रहती है, ठीक है. So it is also good for them, you know. Today the recipe that we're gonna do, this super mango delight, it's a very easy one. सब कुछ घर में ही अवेलेबल होता है. For that I have brown and white bread here. मैं प्रेफर करूँगी आज ब्राउन ब्रेड यूज़ करना. Okay, so next is we have mangoes, fresh mangoes that I've just chopped. कोई भी वैरायटी आप ले सकते हो, नॉन नेसेसरी कि अल्फांजो है ही यूज़ करना है आपको. आप बादाम आम, रत्नागिरी, आप तोतापुरी, इतने सारे टाइप्स ऑफ मैंगोज आते हैं, सबका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, वो यूज़ कर सकते हो. थोड़ा मैंने गार्निशिंग के लिए रखा है. आई हैव ड्राई फ्रूट्स, most important, ठीक है. Have your kids make this. This is a fun activity. I have some badam here, almonds, okay. I have some sunflower seeds here, okay. I have cashew. ये major proportion में मैंने लिया है because I'm gonna create a butter out of all this. And last what I have is one इलायची, okay. This is completely optional. अगर आपको इलायची नहीं पसंद है, you can just skip it. You can add either cinnamon या आप nutmeg powder use कर सकते हो. And the last ingredient here is sesame seeds, tilli. Good for a glow on your skin, good for your hair, good one for for women because it contains a lot of calcium. And obviously all this is gonna give you a lot of minerals and vitamins. So this kind of proportion for one day I think is good enough for your superfoods from the dry nut category. So I'll tell you how to make a butter out of this today. तो और नेक्स्ट है, मैंने थोड़ा सा चॉकलेट, अमूल मिल्क चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट का ब्लेंड ले लिया है यहाँ पे फॉर गार्निशिंग. और थोड़ा सा मैंने अमूल क्रीम ले लिया है, ओके. एंड थोड़ा सा कोको पाउडर है, वो भी मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करने वाली हूँ. सो व्हाट आई हैव डन इज, ये सारे जो सीड्स है और ड्राई नट्स है, अगेन आई रिपीट, आलमंड्स, कैश्यू मैंने सबसे ज़्यादा लिए हैं. यू कैन चेंज इट, लेकिन कैश्यूज इफ़ यू कीप इट मोर, जो बटर की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ब्यूटीफुल होगी और मखमल जैसा होगा, वेलवेट जैसा.
I would suggest you do not use walnuts here, because walnuts का क्या होता है ना, once you start crushing them, थोड़ा सा उसका एक pungent smell भी होती है और थोड़ा सा एक bitter taste भी आता है. I mean, of course, if you like it, you can just add it. लेकिन I would suggest in this recipe you should not. Then you have sunflower seeds and tilli, sesame seeds and cardamom. You can skip this or you can replace this with cinnamon or nutmeg. और कुछ नहीं है तो no problem. So what I did was, इसको हमें कुछ भी नहीं करना है. ये जो ड्राई नट्स मैंने अभी आपको बताए, इनको कुछ नहीं, एज इट इज़ एक छोटे ग्राइंडर में डालिए. ठीक है, आप इसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में लेके बना के फ्रिज में रख सकते हो. फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में 1 वीक तक अच्छा रहेगा. एयर टाइट में बना के रखिए. सो मैंने इसको कोर्सली ग्राइंड कर लिया है. बहुत ज़्यादा कोर्स भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा स्मूथ भी नहीं बनाना है, बिकॉज इसमें हम क्रीम ऐड करने वाले हैं. सो एज सुन एज यू ऐड क्रीम, व्हाट विल हैपन इज वो सब लम्पी हो जाएगा. तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको कोर्स रखना है. इसको सेकना नहीं है, इसको फ्राई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. डायरेक्टली ग्राइंड कर लीजिए. फ्रीजर में रखा है, थोड़ी देर थॉ कर लीजिए सब कुछ, एंड देन यू कैन ग्राइंड इट. ओके, बिकॉज here we are trying to reduce our cooking, make our life simpler, and जो जैसा है उसको raw form में हम खाने की कोशिश कर रहे हैं with maybe little bit of cooking. So we're gonna move to the recipe. I'm just gonna get the butter. You can show the ingredients again. Okay, so guys, I have a grill here, you know, जो मैं यूज़ करने वाली हूँ इस रेसिपी के लिए. अगर आपके पास ये नहीं है तो परफेक्टली फाइन, आप उसको तवे पे बनाइए. तवे पे भी उतना ही डिलीशियस लगेगा. मेरे पास है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ. आप नॉर्मल टोस्टर, जो टोस्टर गैस पे रख के हैंडल वाला होता है, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है. तो उसमें तो और बटर का जो टेस्ट है ना, अमूल बटर का टेस्ट, उसमें तो बहुत एनहांस हो जाता है. आई विश आई हैड इट, बट आज नहीं है मेरे पास, तो मैं ये ग्रिल यूज़ कर रही हूँ. सो लेट्स बिगिन द रेसिपी. इसके लिए जो हमें लगने वाला है वो है 3 ब्रेड्स. ठीक है, 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू मेक 1 पोर्शन. अब आप ब्रेड कोई भी यूज़ कर सकते हो, मल्टीग्रेन, आटा, होल व्हीट, मैदा, जो यूज़ करना है वो आप कर लीजिए. नहीं है तो जैसे मैंने बताया, छोटे छोटे पराठे बनाइए और उसका ही सैंडविच बनाइए, वो ज़्यादा हेल्दी है. ओके, सो वी स्टार्ट विथ पुटिंग बटर. तो सबसे पहले हमें एक स्लाइस पे लगाना है. रूम टेम्परेचर पे हो बटर तो देखिए आपकी ब्रेड भी नहीं टूटती. एंड वन मोर टिप, अगर आप सैंडविचेस बना रहे हो, माई सजेशन इज नेवर यूज फ्रेश ब्रेड. नो फ्रेश ब्रेड डजंट मीन आप 10 दिन पुरानी ब्रेड यूज करिए. वॉट यू कैन डू इज बाय 1 or 2 days प्रायर, बिकॉज उससे क्या होता है, ब्रेड स्टिफ हो जाती है. आप इट्स ईजियर टू वर्क विद इट. ठीक है, खराब नहीं होती है ब्रेड की. वैसे भी लाइफ 5 to 6 days होती है. कहीं कहीं जगह पे दे फ्रीज एग बहुत लंबा टाइम भी रहता है. सो या, Can someone use pineapple instead of mango? पाइनएप्पल इन दिस रेसिपी, अब क्या होता है, पाइनएप्पल जो फ्रेश पाइनएप्पल आता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा स्वीट हो. यू नो, वो थोड़ा सा, और वो स्टिफ भी होता है, कड़क भी होता है. मैंगोज जैसे कि बहुत इजीली टू मुश रहते हैं एंड बहुत अच्छे से ये सैंडविच के अंदर बैठेंगे. फिर भी आप यूज़ करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंटिंग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आप जो यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो. लेकिन पाइनएप्पल्स आई वुड नॉट सजेस्ट, वो एक अलग ही क्रंच मुंह में आएगा, यू नो, एंड आई थिंक इट डजंट फिट इनटू द सैंडविच. या, बट इफ यू गेटिंग द कैंड pineapples, I would suggest you could use it. Okay, so first was I layered one of the slices with butter. Second को भी मैं कर रही हूँ. ठीक है, इसको छोड़ दूंगी. थर्ड वाले को मैं छोड़ दूंगी. याद रखिएगा, हमें ऊपर नीचे सैंडविच के दोनों साइड्स पे बटर लगाना है. ओके, सो इसको मैं उल्टा कर दूंगी. राइट, इसको मैं उल्टा कर दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द फर्स्ट लेयर. फर्स्ट लेयर में अगेन मुझे बटर लगाना है. नीचे तो मैंने लगा दिया. दिस विल गो ऑन द नीचे का साइड. जो अमूल बटर का टेस्ट है विथ मैंगो, you cannot beat that taste. You cannot just beat that taste. The most yummiest, because
जो मैंगो की फ्रेशनेस है, you know, that smell of fresh mangoes and the sweetness and the sourness with velvety butter which has a little salt. Imagine. Okay. See. So if someone doesn't have sunflower seeds, Okay. so that is optional. Yeah, of course it is optional. Miss out on any ingredient, no issues. Add whatever you like. Add whatever you like. I would just say that, you know, don't go for very hard fruits, or do not go for very you know, like bitter kind of dry fruits. That's it. एक्सपेरिमेंट करिए, आपकी डिश है, आपका घर है, जैसे बनाना है बनाइए. मैं आपको एक बेसिक गाइडलाइन दे रही हूँ. जस्ट मेक द वे यू वांट एंड इट विल टर्न आउट वेरी नाइस. सो अब मैं इसमें थोड़ा सा मैंगो लगा रही हूँ. जो भी वैरायटी ऑफ मैंगो आपको यूज़ करना है. एंड इनफैक्ट आई वुड से दैट, यू नो, यू शुड यूज़ ऑल क्वालिटीज़ ऑफ मैंगो. डोंट गेट स्टक टू वन क्वालिटी. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेयर हो गया. नाउ इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ा सा ऑटोमेटिकली इस पर सेट हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज़, हमें नेक्स्ट लेयर के लिए बटर बनाना है. ठीक है, तो वो बटर में हम क्या करेंगे, ये जो ड्राई मिक्स बनाया था, इन ड्राई फ्रूट्स को हमने ग्राइंड कर लिया था. ठीक है, उसको कोर्सली ग्राइंड किया है. उसमें मैं थोड़ा सा ये जो फ्रेश क्रीम है अमूल का, वो डालने वाली हूँ. ओके, एंड आई एम गोना मिक्स इट. बहुत ज़्यादा नहीं डालना है. For this, about 2 tablespoons of dry fruit mixture and nuts mixture, I'm gonna use about 1 tablespoon only of this fresh cream. Okay, now no need to add any sugar here because dry fruits का अपना sweetness होता है और these mangoes are very sweet, so we don't need to add any sugar and, you know, take away all the goodness of this sandwich. ठीक है, ये हमारा बटर रेडी है. See, so simple. You can just apply it to your toast also and eat it in the morning. अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगी. I'll just keep it here. And now I'm gonna apply this butter. Isn't it so healthy? पता भी नहीं लगेगा कि अंदर इतने सारे ड्राई फ्रूट्स है. वन मोर टिप, अगर आपकी फैमिली बिल्कुल ही अगेंस्ट है ड्राई फ्रूट्स खाने के, बच्चे बिल्कुल मम्मी काजू आ गया मुंह में, या काजू के लिए तो वैसे कोई मना नहीं करता है, दे ट्राई टू लुक फॉर काजूज इन एनी डिश, बट अगर बादाम आ गई या सीड्स आ गए तो ये क्या डाल दिया है, तो आप उसको बहुत फाइनली बना लीजिए और कम मलाई में मिक्स कर लीजिए. ठीक है, सो दिस वॉज आवर लास्ट लेयर. ऊपर से क्रीम नहीं हो तो मलाई मिला सकते हैं. यस, बिल्कुल मलाई, अमूल दूध या जो भी आपके घर में दूध आता है उसकी मलाई आप यूज़ करिए. वो भी मैं बोलूँगी फर्स्ट डे की मलाई नहीं, नेक्स्ट डे आप यूज़ करिए उसको, बिकॉज फर्स्ट डे की मलाई में घी टाइप ऑफ एलिमेंट रहता है जो थोड़ा सा येलोइश रहता है और उसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं होता है. सो यूज़ इट फ्रॉम द नेक्स्ट डे. लाइक अगर कल का दूध है, आज उसकी मलाई यूज़ करिए. एंड बटर सॉल्टेड अनसॉल्टेड? बटर सॉल्टेड, बिकॉज विथ मैंगो सॉल्टेड बटर बहुत टेस्टी लगता है. वो जो मिक्सचर ऑफ टेस्ट है ना, स्वीट, सार एंड सॉल्टेड, अमेजिंग. सो ये हमने यहाँ पे बटर लगा दिया है. नाउ ऑन द अदर साइड, ये इस तरह से आई एम जस्ट गोना स्विच ऑन माई ग्रिल हियर अगेन. दोनों साइड्स पे मैंने बटर लगा दिया है, ऊपर भी और नीचे भी. ओके, सो दिस इज़ लाइक अ वेरी हेल्दी सैंडविच. ऑलरेडी मैंने पहले से इसको थोड़ा गर्म करके रखा था. बी केयरफुल वाइल यूजिंग ऑल दिस. ठीक है, इसको बहुत प्रेस नहीं करना है, थोड़ा सा आप कर दीजिए. तवे पे भी अगर आप करें तो ये बनाइए और डायरेक्टली आप सेक दीजिए इसको. ठीक है, सो वाइल ऑल दिस गेट्स, आई मीन जब तक ये बनता है हम इसकी गार्निशिंग रेडी कर लेते हैं. ओके, आई जस्ट ब्रिंग द प्लेट. You can show the Amul products also in between. Okay, so I have this final plate here. Same जो हमने open buns Mexicana के लिए use किया था. I'm gonna use this again. This I bought from an aunt. Even yes, I just wanted to show off my apron also today. This is a very beautiful apron made by one of my aunts, one of my beautiful aunts. She handcrafts almost everything on this earth. So how does it look, guys, on me? Let me know. Give me a thumbs up for the apron.
सो अब इसकी गार्निशिंग के लिए मुझे क्या करना है, ये जो अमूल चॉकलेट ब्लेंड है इसको मैं थोड़ा सा मेल्ट करूँगी. ओके, सो आई एम जस्ट गोना गो ओवर टू द माइक्रोवेव एंड मेल्ट इट. ठीक है, इसको मैं रूम टेम्परेचर पे ले आई थी. सो आई थिंक अबाउट 20, 30, 40 सेकेंड्स शुड बी फाइन. चॉकलेट मैंने अंदर नहीं डाला है बिकॉज अगर अंदर डाल दूंगी तो उसकी गुडनेस खत्म हो जाएगी. थोड़ा सा ऊपर, जस्ट टू गिव इट अ ब्यूटीफुल लुक. ऐसे लगना चाहिए कि हम 5 स्टार होटल में आए हैं और दो लॉकडाउन में है. थोड़ा सा अच्छा सा टेबल प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार हो जाइए, बाल खोल लीजिए एंड हस्बैंड्स कैन प्रॉब्ली just get their shaving done or get their trimming done. बच्चे भी अच्छी तरह से dress up हो सकते हैं and sit around the table, make memories, take pictures of your food, take pictures of yourself. I like to do such things for my family and I make it a point. I do it every weekend and lockdown was actually rosy. Okay, so yeah, almost the chocolate should be done now. I'm gonna check my toast as well. Okay, so our chocolate is ready and our toast is also ready. Now I'm gonna mix this. Okay, तो हम garnishing ready कर लेते हैं. सचिन here. Okay, first thing that I want to do, मैंने जैसे कि यहाँ पे कोको पाउडर लिया हुआ था and I'm gonna use. Can someone skip chocolate? Yes, definitely you can skip chocolate. आपको चाहिए तो आप हनी भी डाल सकते हो. आप चाहो तो कोई टाइप का नेक्टर, अगाव एक्सेट्रा जो भी अवेलेबल है, मेपल सिरप डाल सकते हो, जैम को डाल सकते हो. जैम बहुत स्टिफ होता है. वन मोर टिप, उसमें थोड़ा सा वाटर मिलाइए और फ्यू सेकंड्स के लिए 10-15 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए. और नहीं करना है तो घर में बना रहे हैं, हमें ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन तो करना नहीं है. बट या, ऑल दिस एक्चुअली इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ योर फूड. सो मेरे पास एक सीव है ऐसा घर में जो हमारे पास होता है एंड आई हैव कोको पाउडर हियर. मैं थोड़ा सा यहाँ पे, बिकॉज आई वॉन्ट माई डिश टू लुक सुपर यमी टू यू गाइज एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई दिस वेरी वेरी सून विथ वॉट एवर इंग्रीडियंट्स यू हैव. प्लीज़ इन इंग्रेडिएंट्स के लिए डो नॉट वेंचर आउट. जो भी है मैंने आपको बताया है सब्सटीट्यूट्स, और नहीं है तो प्लीज़ फील फ्री टू स्किप एनीथिंग दैट आई हैव मेंशन्ड हियर. स्किप वॉट एवर यू वॉन्ट, ऐड वॉट एवर यू वॉन्ट. फैमिली के लिए जो भी बनाएंगे बहुत अच्छा बनेगा. प्यार से बनाइए और प्रेजेंट भी प्यार से करिए. चॉकलेट के साथ क्या मिक्स किया है? सॉरी, चॉकलेट के साथ क्या मिक्स किया है? चॉकलेट के साथ मैंने कुछ मिक्स नहीं किया है, जस्ट मेल्टेड द चॉकलेट, दैट्स इट. ओके, सो दिस इज़ वन पार्ट मैंने इस तरह से लगाया है. और दूसरे पार्ट में कैन यू जस्ट ये ड्रिजल करूँगी मैं चॉकलेट थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे. ओके, बाद में थोड़ा सा और करेंगे. आई हैव ये चेरीज़ वगैरह हम बाद में लगाते हैं. हमारा यहाँ पे सैंडविच जो है, ये ब्यूटीफुल सैंडविच रेडी हो गया है. आई एम गोना कट इट. थोड़ा सा गर्म है, 2 मिनट और ठंडा होने देते हैं. बाहर निकाल लिया मैंने ग्रिल पे से. जो हमने प्लेट यहाँ पे तैयार की है, आई हैव सम चेरीज़, तो ये चेरीज़ को मैं इस पे लाइन कर दूँगी. हाउ इज़ इट लुकिंग गाइज, द प्लेट, हाउ इज़ इट लुकिंग? इस तरह से. एंड आई हैव दिस केरी raw mango also that I'm going to use here. मैंगो है तो मैंने जस्ट थोड़े से मैंगो के ऐसे स्लाइसेस बना दिए हैं और वो मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ. आई डिडंट गेट, आई वांटेड पुदीना मिंट फॉर गार्निशिंग, लेकिन मुझे नहीं मिला तो मैं ये रॉ मैंगो यूज़ कर रही हूँ. ओके, so our plate is ready and so is our sandwich. I'm gonna cut it. Sharp knife लीजिए और उससे कट कर दीजिए. I'll go over it once again so that finishing के साथ कटे, नहीं तो कई बार टूट जाता है.
So here, look at your sandwich. Mango है, cashew and dry nuts का butter भी है, अमूल butter भी है, सब कुछ है इसमें. So let's just keep it like this. Okay. And maybe I'll just put some chocolate. आप chocolate completely optional है, आप skip कर दीजिए. थोड़ा सा मैं यहाँ पे in this part. I think it looks empty. यहाँ पे थोड़ा सा ये डाल देती हूँ. इजी स्टफ है, बहुत इजीली आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए भी. मैं तो खुद के लिए भी करती हूँ. यू नो, वन सीक्रेट आई टेल यू. लोग यूजुअली क्या करते हैं, अच्छी क्रॉकरी, अच्छा लिनन और अच्छे खाने की चीज़ें नहीं, बट या अच्छी क्रॉकरी, यूजुअली न्यू ग्लासेस लाइक ऑल दीज ईयर, यू नो. आई लव क्रॉकरी. ओके, सो ये सब चीज़ें जब मेहमान आते हैं ना तब निकालते हैं कि उनको अच्छा अच्छा प्रेजेंट करें. बट विथ मी, आई एम अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ शेफ. आई लाइक टू डू इट फॉर माई सेल्फ. सो इवन इफ आई एम मेकिंग अ रेगुलर कोल्ड कॉफी, आई डू ऑल चॉकलेट वॉकलेट उसके अंदर एंड देन कीप इट इन द फ्रिज. बाहर निकाल के अच्छे ग्लास में खुद के लिए बनाती हूँ और अपनी फैमिली के लिए भी. मेहमान आएंगे, आते रहेंगे, तब उस दिन की सिचुएशन पे देखेंगे क्या करना है. ओके, सो हियर just gonna make a last drizzle here. थोड़ा सा और. आप चाहें तो वाइट चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं. Okay, I don't want to go too much over the top with it. Just focus here. So I'm gonna take this to the table. You can just reach the table. So guys, this is my lockdown recipe for all of you, and so this is open buns Mexicana, and the other is our super mango delight. थोड़ा सा अच्छी तरह से प्रेजेंट करिए. नाउ लेट मी टेक द कैमरा, द फोन फ्रॉम सचिन. आई ऑलरेडी मेड सम केरी का पना हियर एंड केप्ट इट. आई हैड सम फ्लावर्स, थोड़ा सा अच्छी तरह से डेकोरेट कर दिया, बिकॉज राइट आफ्टर दिस आई एम गोना टेक अ पिक्चर ऑफ दिस एंड पोस्ट इट ऑन माई प्रोफाइल, ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई फेसबुक पेज. डू लाइक इट गाइज. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड यू गोना मेक दिस delicious and healthy recipe for your family. And present भी बहुत अच्छी तरह से करेंगे. Once again I want to show you, and yes, I told you that I'll be giving you some tips on food photography. अगर कुछ बना रहे हैं तो उसको कैप्चर भी करिए ना. और कैप्चर करना है तो ऐसे नहीं कि कुछ भी प्लेट में कर दिया. आपके पास जो बेस्ट है ना वो निकालिए. और बेस्ट में भी बहुत ज़रूरी नहीं है बहुत फैंसी और बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें आप यूज़ करो. व्हाट यू कैन डू इज़ लुक फॉर प्लेन थिंग्स लाइक कैसे वाइट प्लेट, ब्लैक प्लेट, ऐसा जैसे मैंने यहाँ पे लिया है. लेट्स सी दिस अगेन. ठीक है, मैंने ये वाइट प्लैटर्स यूज़ करे हैं, क्रीमिश ऑफ वाइट प्लैटर्स करे हैं. सॉरी, ओके, सॉरी, आई मेस्ड विद द कैमरा. ओके, सो मैंने यहाँ पे जैसे वाइट, ऑफ वाइट, क्रीमिश टाइप ऑफ प्लैटर्स यूज़ करे हैं एंड सिंपल ग्लासेस यूज़ करी है. थोड़ा सा इस पर एक लेमन कट करके लगा दिया, छोटा सा उसमें कट लगा दीजिए. यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट कर दीजिए. 2-3 फ्लावर्स रख दीजिए जो भी घर में है. जस्ट नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में उसको प्रेजेंट करिए. जस्ट सी, लुक एट दिस. खाने का टेस्ट ही मज़ा, बिल्कुल मतलब मज़ा ही अलग हो जाएगा. थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा ज़्यादा प्यार. आई होप यू गाइज enjoyed this session with me and hope to see you guys again very soon. Thank you Amul very much for giving me this opportunity today, and stay safe. घर में रहिए अपने और अपनों के साथ और गाइडलाइंस को ही फॉलो करिए. बाहर निकलना इतना ज़रूरी नहीं है. अभी तक रह रहे हैं, सब कुछ मैनेज हो जाता है. खाना भी बन जाता है, खाना मिल भी जाता है, हर तरीके का जुगाड़ पॉसिबल है. ज़रूरी नहीं है आज ही सब कुछ हासिल कर लिया जाए. सब कुछ मिलेगा टाइम आने पे.
आज अपनी और अपनी फैमिली की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है. सो अपने फैमिली के साथ घर में रहिए, लॉकडाउन का एंजॉय करिए, अमूल के प्रोडक्ट्स यूज़ करिए और ज़्यादा वेंचर आउट मत करिए unless and until very necessary. Please follow WHO guidelines also and follow Ovens Up. Don't forget to follow Ovens Up, guys. And you can have a look at our products at ovensup.com. So I think that's it. Thank you very much, guys. Thank you.